الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز و مکرم علماء کرام، اسی طرح تمام تر مساہمین اور تمام تر اہل بستی اور پردہ نشی تمام تر خواتین، الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام کل سے رواں دواں ہے اور رفتہ رفتہ اپنی منزل تک پہنچ رہا ہے۔ اب کچھ ہی وقت بچا ہے کہ بس ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں درخواست کروں گا ان تمام تر حضرات سے جو ادھر ادھر ہیں کہ وہ جلد از جلد آ جائیں۔ اب باضابطہ ہمارا یہ پروگرام شروع ہو گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں دستار بندی کا جو سلسلہ ہے وہ کیا جائے گا۔ جن طلباء نے جامعہ دارالفلاح میں قرآن کریم حفظ کیا ہے اور قرآن کریم حفظ کی تکمیل کی ہے، ان کے سروں پر دستار فضیلت عطا کی جائے گی۔ اس لیے وہ طلباء اور ان کے جو سرپرستان ہیں، ان کے والدین ہیں یا دیگر حضرات جو ان کے متعلق ہیں، وہ فوراً جلسہ گاہ میں آ جائیں۔ اب کسی بھی طرح کی کوئی تاخیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ تقریباً اب بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے۔ صرف ہمارا یہ پروگرام اب بہت ہی مختصر وقت میں مکمل ہو جائے گا۔ خیر، آج مجھے اور آپ کو شکوہ ہے ناکامی کا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس علم تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ یہ ایک وجہ ہے ناکامی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم سب کے پاس ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، قانون کس نے اتارا ہے، رب کا قانون کیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں سے میں اور آپ واقف ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ناکامی کی سب سے بڑی وجہ اگر ایک ہے تو وہ ہے علم پر عمل نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے اشرف بنایا اور ساری مخلوقات کی سرداری کا تاج اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے سر پر سجایا اور اس کو تمام تر مخلوقات کا سردار بنا دیا۔ مخلوق تو اللہ کی اور بھی ہے، حضرات ملائکہ ہے جو اللہ کی مخلوق ہے، جو مجھ سے بہتر ہے، آپ سے بہتر ہے، جن سے نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان سے کوئی جرم ہوتا ہے، نہ ان سے کوئی خطا ہوتی ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک جناتی مخلوق ہے جو طاقت میں مجھ سے زیادہ ہے، آپ سے زیادہ ہے، تمام تر انسانوں سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر 5 قسمیں کھا کر کے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی
अहसनी तक़वीम। अगर देखना चाहते हो इंसान की खूबसूरती को, इंसान की अफजलियत को, उसकी रंगत को, उसकी बनावट को, उसकी सजावट को, उसकी जीनत को, तो देखो, पढ़ो कुरान की ये आयत, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, 5 कसमें मेरे रब ने खाई है। 5 कसमें खा करके अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की अफजलियत को बयान फरमाया है। मैं और आप तो वो मखलूक हैं कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बनाई है। और ये जन्नत मेरा कहना आसान है, जन्नत आपका सुनना आसान है। कैसी है वो जन्नत, कैसा है वो महल, कैसा है वो किला। अगर जन्नत की खुशबू का एक छोटा सा जर्रा दुनिया वालों के लिए भेज दिया जाए या छोटा सा सुराख कर दिया जाए तो मजीद किसी भी खुशबू की जरूरत ना हो। अगर जन्नत से किसी जायकेदार फल का या खाने का एक जर्रा दुनिया वालों के लिए भेज दिया जाए तो तमाम तर जायके फीके पड़ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको बनाया और बहुत सारी नेमतों से नवाजा। कितनी नेमतें, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो हरगिज अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं किया जा सकता है। सर के बालों को गिना जा सकता है, आसमान के सितारों को गिना जा सकता है, आसमान के सियारों को गिना जा सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें हैं, इनामात है, उनका इहाता नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नेमतों से मुझे और आपको नवाजा है। बहुत सारी नेमतें हैं, ला तादाद हैं, बेशुमार हैं। अगर गौर किया जाए तो इंसान दूर न जाकर के अपने ही जिस्म के आज़ा पर गौर कर ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी कीमती नेमतों से उसे नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके चेहरे पर 2 खूबसूरत आंखें सजाई है। अगर इन आंखों की कीमत को मालूम करना है तो जाओ और किसी नाबीना से पूछो जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, जिसकी आंखों में देखने की सलाहियत नहीं है, जिसकी आंखों में देखने की कुव्वत नहीं है। अरे उससे पूछो कि आंखों की कीमत क्या है। आप किसी नाबीना का हाथ पकड़ो और उससे कहो कि तमाम तर खजानों की चाबियां, जमीन और आसमान की तमाम तर बादशाहत और तमाम तर खजानों की मुकम्मल तौर पर हुकूमत और तमाम तर तख्ते शाही का तुम्हें मालिक बनाया जाता है। और उसके बाद आप उस नाबीना से, आप उस अंधे से उसकी सबसे पहली ख्वाहिश पूछें, आप उससे सबसे पहली तमन्ना पूछें तो यकीनी तौर पर वो नाबीना, वो अंधा, वो इंसान के जिसकी आंखों में देखने की सलाहियत मौजूद नहीं है, वो सबसे पहले ये कहेगा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है, मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये है, मेरी सबसे बड़ी चाहत ये है कि ये सारी बादशाहत ले लो, ये सारी खजानों की चाबियां ले लो, ये सारी हुकूमतें ले लो, लेकिन इनके बदले में मेरी आंखों की बीनाई मुझे वापस कर दो। अगर आंखों की कीमत जाननी है तो किसी नाबीना से पूछो। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको 2 हाथ दिए। अगर हाथों की कीमत को मालूम करना है, जानना है तो किसी ऐसे शख्स को पकड़ो कि जिसके हाथ शल हैं, जिसके हाथों में ताकत नहीं है, जिसके हाथों में कुव्वत नहीं है। आपको मालूम होगा कि इन हाथों की कीमत क्या है। इसी तरह अल्लाह ने मुझे और आपको 2 पैर दिए हैं। इन पैरों की कीमत को मालूम करना है तो रास्ते पर किसी घिसटते हुए इंसान को पकड़ो, किसी चौराहे पर जाओ, किसी गली में जाओ और वहां पर अगर कोई घिसटता हुआ वो ऐसा आदमी आपको नजर आए कि जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है, जो अपने पैरों पर चल नहीं सकता है, आप उससे मालूम करो कि पैरों की ताकत क्या है, इनकी कीमत क्या है। तो वो
इंसान आपको बताएगा कि आखिर इनकी कीमत क्या है। अल्लाह ने मुझे और आपको पूरा पैकेज दिया है। आप अपने आज़ाओं पर गौर कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ला तादाद बेशुमार नेमतों से मुझे नवाजा है, और इससे अलग हटकर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और नेमत मुझे और आपको मरहमत फरमाई। मैं इससे थोड़ा अलग हटता हूँ और आपके सामने ये कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा अलग हट करके सोचें और गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको एक ऐसी नेमत से नवाजा, एक ऐसे बड़े इनाम से नवाजा कि मुझे और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब का उम्मती बना करके पैदा किया है। अरे वो नबी कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश अंबिया किराम ने की है। ये कितनी बड़ी नेमत है। वो नबी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे अपना हबीब बनाया, वो नबी अल्लाह ने जिसे अपनी मुलाकात के लिए बुलाया, वो नबी आज हमने उस नबी का तरीका छोड़ा, आज हमने उस नबी का किरदार छोड़ा, आज हमने उस नबी का अखलाक छोड़ा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको अफजल बनाया और ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया कि जिस नबी के अखलाक और किरदार बहुत ही आला है। अगर उसके अखलाक और किरदार पर गौर किया जाएगा तो मेरी और आपकी जिंदगी संवर जाएगी। अगर ये गौर किया जाए और मुझे और आपको इस पर गौर करने का वक्त मिले और हम सोचें कि अगर मेरी और आपकी जिंदगी में मेरे नबी का तरीका आ जाए, आपके अखलाक आ जाएं, आपके किरदार आ जाएं, तो खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये वक्त, ये मौका, ये लम्हात मुझे और आपको मरहमत फरमाए हैं। ये लम्हात बार बार नहीं आते। उन्हीं कीमती लम्हात में से एक ये लम्हा भी है जो गुजर रहा है और बहुत जल्द गुजर जाएगा। फिर ये लम्हा वापस नहीं आएगा, फिर ये घड़ी वापस नहीं आएगी, फिर ये वक्त वापस नहीं आएगा और फिर ये मौका वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरे और आपके लिए मौका है कि हम आ जाएं और उलमाए किराम के बयानात को सुने। हमारे दरमियान में उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। ये मेरे और आपके लिए बड़ी खुशी का मौका है, तमाम तर अहले बस्ती के लिए, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको, तमाम तर अहले बस्ती को इस मौके से नवाजा। और मेरी और आपकी बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका अता किया कि टोड़े की इस सरजमीन पर इतना बड़ा प्रोग्राम और उलमाए किराम का इतना बड़ा हुजूम और इतनी बड़ी तादाद तशरीफ लाई है और ला रही है और लाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने इस जलसे को, अपने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए फौरन पिंडाल गह में आ जाएं। मेरा मकसद यहां बैठ करके बयान करना नहीं है, न मैं कोई खतीब हूं, न मैं कोई मुकर्रिर हूं। मैं तो आप ही की तरह एक छोटा सा तालिबे इल्म हूं। मैंने छोटा सा अपने जहन का थोड़ा सा सबक आपके सामने रखा है। मेरा असल मकसद यही है कि आप हजरात तशरीफ ले आए और जो उलमाए किराम हमारे आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, उनके बयानात से, उनकी बातों से हम महजूज हों। इसलिए मैं अपने तमाम तर उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जो बाहर हैं, जो अपने घरों में हैं, जो अपने कामों में मशगूल हैं, अरे काम तो रोज होंगे, उलमाए किराम की जियारत का मौका ना मिलेगा, अरे काम तो रोज होंगे, लेकिन उलमाए किराम की जबान से इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह की कीमती बातें सुनने का मौका नहीं मिलेगा। ये मौका चला जाएगा और उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे, ये भी चले जाएंगे, और इसी तरह हमारे ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान, ये तलबाए किराम भी चले जाएंगे। मौका है, आज जियारत कर लीजिए उलमाए किराम की, तलबाए इज़ाम की, और इसी तरह से आने वाले तमाम तर मेहमान आने किराम की। इसलिए मेरे भाइयों, आप घरों से
से निकलो, आओ और अपने इन बच्चों के प्रोग्राम को देखो, अपने मदरसे के बच्चों के प्रोग्राम को देखो, और जो बाहर से तलबा आए हैं उनके नताइज का ऐलान किया जाने वाला है। इसी तरह हमारे मदरसे के अंदर जिन तलबा ने हिफ्ज़ कलाम पाक मुकम्मल किया है उनकी दस्तार बंदी भी होने वाली है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप फौरन आ जाएं ताकि ये सिलसिला अभी वक्त पर शुरू किया जा सके और किसी भी तरह की प्रोग्राम में किसी भी तरह की ताखीर ना हो सके। खैर, बहरहाल अब मैं आखिर में अपने तमाम तर मेहमानान इज़ाम का शुक्रिया अदा करूंगा, खुसूसन हमारे जो मुसाहिमीन हैं, तलबा इज़ाम हैं। आप हजरात ने अपने माफी ज़मीर को अदा किया, यकीनन बड़ी खुशी हुई, हमारे दिल को बड़ी फरहत हुई, और मैं अपने तमाम तर मुंतज़िमीन की तरफ से आप हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और एक और बात ये कि जो हजरात, ये जो तलबा कामयाब हुए हैं, कामयाब तो सब हैं, लेकिन जो आला नंबरात से कामयाब हुए हैं वो तो काबिल मुबारकबाद हैं ही, लेकिन जो फाइनल मरहले तक नहीं पहुंच सके या जो फाइनल मरहले तक पहुंचे हैं लेकिन उनकी पोजीशनें, सबकी तो बहरहाल पोजीशन नहीं आ सकती है, लेकिन ये फाइनल में पहुंचना भी अपने आप में एक तरह की पोजीशन है और ये बहुत आला है। आप हजरात ने अपने माफी ज़मीर को अदा किया है, यकीनन आप हजरात बहुत ज्यादा मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। और जिस तरह से आपने अपने आप को पेश किया, अपनी बात को पेश किया और अपने अंदर के जज्बात को पेश किया, यकीनन वो तमाम तर चीजें इस लायक हैं कि आपकी जितनी भी मदह सराई की जाए वो कम है। आप बड़े काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल तारीफ हैं। इसी तरह से जो हमारे मुसाहिमीन हैं और वो इस मरहले तक नहीं पहुंचे हैं, वो मायूस ना हो, ना उम्मीदी के शिकार ना हो, बल्कि वो मेहनत की और इसी तरह से आगे आने वाले मुसाबके की तैयारी में लग जाएं और वो कोशिश करें कि आइंदा अगर हमें ऐसा मौका मिलेगा तो हम इस लेवल पर मेहनत करेंगे, इस तरह से कोशिश करेंगे कि हम भी आला नंबरात से कामयाब होकर पोजीशनें हासिल करेंगे।